तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था, लेट मी जस्ट चेक। ये हमने किया था हाँ, डिफरेंशिएशन तक ये किया था, डेफिनेशन तक। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एनालिटिसिटी। एनालिटिसिटी well, so what is an analytic function? So first of all, let me write down the definition. Okay, just a minute, sitting on it. कहाँ हो रहा है? Anyway, चलो कोई बात नहीं। So a single valued function fz चला गया, it's said to be analytic, regular or holomorphic okay in a domain D. First of all, let me write down this definition. So a single valued function fz is said to be analytic, regular or holomorphic in a domain D if it is differentiable at all points in that domain. Okay, so ये definition है आपकी single valued function के fz is said to be analytic, regular और holomorphic. regular और holomorphic analytic functions के ही नाम है in a domain D के in some domain माने होता है basically layman language में area के in a domain D if it is differentiable at all points in that domain. Okay, now let us develop a test for analyticity. Okay, and this is based on the partial derivatives of real and imaginary parts of these functions. So let me write down. So we shall now develop a test for analyticity of complex function. Okay, so for that what we do, we consider a function fz, okay, which is equal to, let us say, u plus iv. Okay, and further suppose that these u and v, they are functions of x and y.
So this is based on partial derivatives of real and imaginary parts of u and v. Of u and v. So now let us develop it. Okay. So for this we have to derive these Cauchy-Riemann conditions. Cauchy-Riemann condition. Okay. So suppose Fz which is equal to uib plus uib बोल रही हूँ, I am sorry, ux by plus ivx by, okay, is differentiable okay at a point z which is equal to x plus I by, okay, then at z the first order partial derivatives of u and v exist okay and satisfy conditions del u over del x equal to del v over del y and del u over del y equal to minus del v over del x. These are known as Cauchy-Riemann conditions. Cauchy-Riemann conditions. Okay. So Cauchy-Riemann condition, let us derive. Okay. So for this, okay, let us write the derivative of f, the derivative of f, this function f at some point z is given by, as you know, last time हमने किया था. Okay, so this is f prime z where f prime z क्या था हमारा, limit delta z goes to 0. Okay, f z plus delta z minus f z by delta z and इसको भी मैं यहाँ पर डेल्टा z लिख देती हूँ. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा z गोज टू 0. सो इसको डेल्टा f हम लिख सकते हैं. सो डेल्टा f बाय डेल्टा z, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो f प्राइम z क्या है हमारा, d बाई डी जेड ऑफ f z. ये होता है हमारा f प्राइम z d by dz of fz. Now if Ma'am, हाँ, are u and v completely real or they also have imaginary parts?
U and B are reals. U and B are real. Okay, ma'am. Ma'am, हाँ. only real parts are there, no? हाँ, real. They are real. X plus I y में क्या होता है? X and y they are real. Similarly, U and B they are real. But they are dependent on X and y. Okay, ma'am. Okay, both. Now if fz equal to u x y plus I v x y, okay, इसको मैं जहां पर u and v आ रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग, ओके, जहां तो मैं उसको सिर्फ u प्लस आई बी भी लिख रही हूं, देन ऑल्सो दे आर डिपेंडेंट ऑन x एंड y. ओके, नाउ डेल f हमने अभी लिखा ही था. डेल f क्या है हमारा? f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड, राइट. एंड एफ जेड हमारा ये था, तो हमारा एफ जेड क्या आ जाएगा अब? ये एफ जेड इक्वल टू, इसको रुको, मैं यहाँ पर ये लिखने की बजाय कुछ और लिखना चाहती थी. ये तो है ही डेल्टा एफ, ये पहले ही लिख चुके हैं. बट यहाँ पर डेल्टा एफ हमारा क्या हो जाएगा? डेल्टा एफ इज डेल्टा यू प्लस आई डेल्टा बी, मैं लिख सकती हूँ. ओके, एंड वी नो जेड क्या था हमारा? जेड इज एक्स प्लस आई बाई, सो डेल्टा जेड क्या हो जाएगा हमारा? दिस इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा बाई. ये चीजें मैंने, ये वाले सिंबल्स मैंने पहले एक्सप्लेन किए थे, इफ यू रिमेम्बर. यहाँ पर मैंने सारे एक्सप्लेन किए थे कहीं कहीं, ये शुरू में ही किए थे मैंने. ये वाले यहाँ किया था, ये वाला किया था कि डेल्टा जेड क्या है, तो जेड माइनस जेड जीरो है, 2 पॉइंट है ये, तो ये एक्स माइनस एक्स जीरो आ जाएगा, और इसको डेल्टा एक्स बोला था, आई डेल्टा बाई बोला था. ओके, इसी तरह से एफ में है तो ये इस तरह से डेल्टा एफ है ये. ओके, सो आई होप कि तुम मेरे साथ साथ पढ़ रहे होगे. अगर पढ़ रहे हो तब तो तुम्हें पता चलेगा, नहीं तो फिर आगे की चीज़ें पता चलना धीरे धीरे बंद होने लगेंगी आपको. ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, अगर उसको प्रॉपरली समझना है तो. ऐसे केवल एग्ज़ाम के हिसाब से सिर्फ समझना चाहो दैन इट्स डिफरेंट, बट अदरवाइज अगर इसको प्रॉपरली समझना है तो इसको साथ साथ करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको अपने आप. ओके, so now z equal to x plus i by delta z equal to delta x plus i delta by, okay, ये लिख सकते हैं हम. then f prime z क्या हो जाएगा हमारा? then f prime z this is equal to delta u, or let me write down limit delta z going to 0, delta u plus I delta v by delta x plus I delta by, and let me call this equation number A. Okay, so now you can make this equation number A 0 by 2 base. Okay, so हम क्या करते हैं, दो तरह से हम इसको जीरो कर सकते हैं. एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं डेल्टा एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट आई डेल्टा बाई टेंड्स टू 0. ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यू आर गोइंग लाइक दिस, राइट. एंड दूसरी तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है दैट वी टेक डेल्टा बाई एग्जैक्टली इक्वल टू 0. ओके, सो डेल्टा बाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, बट आई डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0. तो एक इस तरह से भी हम अप्रोच कर सकते हैं, तब भी ये 0 हो जाएगा. ओके, तो जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो, आप दोनों तरीके से कर सकते हो.
इस तरह से भी अप्रोच कर सकते हो. ओके, सो इन द केस 1, यहाँ पर 0 है. लेट अस से केस 1. केस 1 हमने लिया वेयर डेल्टा x इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0, but this I delta by this tends to 0. Now if you take this case, then f 1 prime z, मैंने 1 इसके लिए लिख दिया है केस 1 के लिए. Now this is equal to limit I delta by goes to 0. okay, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा आपका डेल्टा u प्लस I डेल्टा v एंड डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा बाय डेल्टा एक्सिस तो हमारा एग्जैक्टली 0 है. दिस इज I डेल्टा y. okay, now this we can write minus I del u over del y plus del v over del y. पार्शियल डेरिवेटिव्स क्यों लिख दिए? okay, because u and b they are functions of x and y both. तो यहाँ पर हम पार्शियल डेरिवेटिव लिख सकते हैं. तो ये फर्स्ट टर्म कैसे आई? i 1 ओवर i है ना, तो i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो i स्क्वायर इज -1. सो देयरफॉर माइनस i डेल u ओवर डेल बाई के प्लस डेल v ओवर डेल बाई. तो ये तो हमारा आ गया इक्वेशन लेट अस से 1. ओके, नाउ इन द सेकेंड केस, in the case 2, okay, now this delta by I delta by is exactly equal to 0, but delta x tends to 0. okay, so in this case आपका क्या आ जाएगा? let us write down f2 सेकेंड केस के लिए प्राइम z, this is equal to limit delta x going to 0. okay, and इधर से क्या आ जाएगा आपका डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा डेल्टा x एंड न्यूमरेटर में आपका आ गया डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v. राइट, अब यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ये क्या आ जाएगा डेल u ओवर डेल x plus I del v over del x. Let us say this equation number 2. okay, now if fz is analytic in the domain, ये अगर कोई डोमेन है आपकी, okay, so if fz is analytic, if fz is analytic, in the region or in the domain D, okay, then we require f1 prime z, this is equal to f2 prime z. oh, f2 prime z. okay, so as a result of this requirement, what happens? So as a result of this requirement, okay, now you compare equation number these 1 and 2. okay, we obtain, this is by comparing equations 1 and 2. right, तो ये क्या आ गया आपका डेल u ओवर डेल x के इक्वल टू, तो ये रियल एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों को कंपेयर करो. सो डेल u ओवर डेल x इक्वल टू डेल v ओवर डेल बाई एंड डेल u ओवर डेल बाई इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x.
So these are your Cauchy-Riemann conditions. Okay, so this is the necessary condition for the function to be analytic. Okay, so if a function is analytic in some domain, then it should satisfy Cauchy-Riemann conditions. Okay, so let me just once again go through this. हमने क्या किया, पहले सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी. तो व्हाट इज डेफिनेशन? A single valued function is fz is said to be analytic. So a function is said to be analytic, और इसके दूसरे भी नाम है like regular और holomorphic in some domain. डोमेन को d से डिनोट किया हुआ है. if it is differentiable at all points in that domain. okay, डोमेन माने एक पर्टिकुलर रीजन है. okay, so now one should develop formula for the function to be analytic. So उसके लिए हमने क्या किया, Cauchy-Riemann condition derive की. So ये Cauchy-Riemann condition होती है that del u over del x equal to del v over del y, del u over del y equal to minus del v over del x. तो हमने इसके डेरिवेशन के लिए क्या किया कि हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी. okay, डेरिवेटिव ऑफ f एट सम पॉइंट z. तो ये इस तरह से हमको पता है कि डिनोट इस तरह से किया जाता है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट z. तो हमने लिख दिया लिमिट z गोइंग डेल्टा z गोइंग टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा z माइनस एफ जेड डिवाइडेड बाई डेल्टा z. फिर मैंने इसको ऊपर वाले पार्ट को डेल्टा f से डिनोट कर दिया, जो कि हम कर सकते हैं. तो इससे कर दिया. नाउ एफ जेड हमने एज्यूम किया है दैट इट इज u प्लस आई वी वेयर u एंड b आर फंक्शंस ऑफ x एंड y. सो डेल्टा f इज डेल u प्लस आई डेल v हम लिख सकते हैं. ओके, एंड z हमारा होता ही है x प्लस आई वाई. तो डेल्टा z डेल्टा x प्लस आई डेल्टा y है. नाउ f प्राइम z, मैं f प्राइम z को इस फॉर्म में मैंने लिख दिया लिमिट डेल्टा z गोइंग टू 0. सो डेल्टा f की जगह मैंने डेल्टा u प्लस आई डेल्टा v रख दिया यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में. इसको कुछ नाम दे सकते हो, इसको क्या बोल दूँ, इस वाली को आ बोल दो. ओके, तो आ से रख दिया. अब जब ये आ गया, इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन a, एंड देन we can make delta z equal to 0 in two ways. Okay, so either you can put delta z delta x exactly equal to 0 or delta y exactly equal to 0. Okay, so you are approaching this point either from this side or from this side. Okay, so first case में हमने ये वाला केस लिया, delta x is exactly 0, and second case में हमने ये ऊपर वाला लिया. सो f1 प्राइम z निकाल लिया हमने, उससे हमें एक इक्वेशन मिल गई. एंड सिमिलरली हमने दूसरे केस में कर लिया, तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन नंबर 2. नाउ वी कंपेयर दीज टू इक्वेशंस बिकॉज दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन. ओके, सो बाय this requirement we get Cauchy-Riemann conditions. So if a function satisfies Cauchy-Riemann condition, then it is said to be analytic function. Okay, so let us do few examples. Okay, so using the Cauchy-Riemann equations, so that the complex function fz, which is given to you 2x square plus y plus I y square minus x, is not analytic at any point. Okay, so find out. So सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, we have to see whether they satisfy Cauchy-Riemann condition or not.
तो यहाँ पर हमें फंक्शन में देखना पड़ेगा रियल और इमेजनरी पार्ट क्या है। तो हमारे फंक्शन में रियल एंड इमेजनरी पार्ट क्या है, ये वाला हमारा u, ओके, एंड दिस वन इज v, ओके। सो fz इज गिवन इन फॉर्म ऑफ u प्लस आई वी। सो यहाँ पर u हमारा क्या हो जाएगा, fz इज 2x स्क्वायर प्लस वाई। सो ये हमारा रियल पार्ट है, सो 2x स्क्वायर प्लस वाई, ओके। एंड v भी हमारा दिया हुआ है, v इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स। देन फाइंड आउट दीज कंडीशंस। सो कॉशी रीमान कंडीशंस, ये क्या है हमारी, डेल u ओवर डेल x। सो डेल u ओवर डेल x इज 4x, और क्या है हमारा डेल v ओवर del x. So del v over del x is minus 1. So and del u over del by this is equal to 1. Del v over del by this is equal to 2y. So you can see from here that del u over del x is not equal to del v over del y, or del u over del y is not equal to नहीं, ये तो इक्वल है। सो डेल ए की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ओके। यू शुड सेटिस्फाई, दिस शुड सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस। सो यहाँ पर हमारी केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, यू कैन सी फ्रॉम हियर, ओके, बिकॉज डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ओके। सो दिस implies function is not analytic. Function is not analytic because Cauchy-Riemann conditions are not satisfied. Okay. So ये तो simplest kind of example है, okay. Similarly, one can do other examples. So for example, you have this kind of a function. So for the function let us say f z equal to x by x square plus y square minus I y over x square plus y square. The real functions u, which is equal to x over x square plus y square, and v, which is equal to minus y over x square plus y square, are continuous except at the point where x square plus y square equal to 0, okay, that is at z equal to 0, okay. So function तुम्हें दिया हुआ है, okay, u and v you know, so find out whether this function is analytic or not. So let us find out. तो कैसे करेंगे, जैसे फर्स्ट में किया था वैसे ही इसमें करेंगे। तो u हमें पता ही है, so we can calculate del u over del x. Similarly you can calculate del v over del x. So calculate करो, del u over del x क्या आ गया, गिवन है हमें u and v, राइट, u and v हमें दिए हुए हैं। सो फाइंड आउट del u over del x। तो जैसे सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू y, ओके। तो दोनों के केसेस में कर लो। तो क्या आ गया, ये आवाज सुनाई दे रही है ना मेरी? यस मैम। ओके, सो जैसे हम करते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर टाइम्स डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर टाइम्स न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, ओके,
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। सो सिमिलर मैनर में यहाँ करो, तो करके देखो क्या आया बताओ। कॉपी पेन लेके बैठते हो कि केवल सुनते हो? बच्चा लोगों, मैम आ रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यस, सो दिस इज, ये आप अपने आप करोगे, बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली कैलकुलेट डेल यू ओवर डेल बाई। सो डेल यू ओवर डेल बाई क्या आ जाएगा आपका? सिमिलरली डेल यू ओवर डेल बाई इफ यू कैलकुलेट, then this thing is minus 2x by, okay, by x square plus y square whole square. Okay, and similarly calculate del v over del x. Del v over del x comes out to be 2xy over x square plus y square whole square, and del v over del y, this is equal to y square minus x square by x square plus y square whole square. ओके, डिनोमिनेटर तो हर एक में सेम ही आएगा, ओके, न्यूमरेटर बदल जाएगा। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि हर एक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है। सो दिस इज कंटिन्यूस, ओके, दे आर ऑल कंटिन्यूस एक्सेप्ट एट द पॉइंट z इक्वल टू 0। ओके, फाइनली कॉशी रीमान कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं? Cauchy Riemann condition, they are satisfying or not? They are satisfying. They are satisfying. So this means Cauchy Riemann conditions are satisfied in this case, okay, except at z equal to 0. So we conclude that the function f is analytic in any domain D, okay, that does not contain the point z equal to 0. Okay, so the function, so because Cauchy Riemann conditions, मैम कोई एक भी इक्वल होगा तो भी सेटिस्फाई होंगी? नहीं, दोनों होनी चाहिए। ओके, सो डेल यू ओवर डेल वाई में माइनस है और डेल वी ओवर डेल एक्स में तो हाँ, तो कॉशी रीमान कंडीशन क्या है आपकी? कॉशी रीमान कंडीशन देखो आप, डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल वी ओवर डेल बाई, बट डेल यू ओवर डेल बाई इज माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ओके मैम, हाँ माइनस है। Okay, so therefore this implies Cauchy Riemann conditions are satisfied, okay, okay, except at z equal to 0. Okay, and thus we conclude that f is analytic in any domain D that does not contain the point z equal to 0। मीन सिर्फ एक पॉइंट पे सेटिस्फाई नहीं हो रही, बट अदरवाइज पूरे डोमेन में दिस कॉची रीमान कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। ओके, सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज टेस्ट द एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन टेस्ट द एनालिटिसिटी of the function
एफ जेड इक्वल टू mod z square. Okay. Now you want to check the analyticity of this function. तो हम इसकी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? What is mod z square? x square plus y square. x square plus y square. So x square plus y square का क्या मतलब हुआ? Imaginary part 0 है. Imaginary part 0. इमेजनरी पार्ट 0 है. दिस मीन्स कि तुम्हारा फंक्शन किस तरह का हुआ? fx is equal to uxy. fx इक्वल टू u प्लस आई वी है. सो इसका इमेजनरी पार्ट 0 है. सो दिस मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स आई, राइट? सो u हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है एंड v क्या है हमारा यहाँ पर? 0 है. 0. Okay, so now if you know this, then you can calculate it. So z is, you know, z is x plus I y. Z star you can write from z, complex conjugate of z. So this is x minus I y, okay, and then z star, you know, z star is x plus I y times x minus I y. So this is x square plus y square, and therefore your function f z, which is equal to u प्लस आई वी, यहाँ पर क्या हो गया? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टाइम्स, आई टाइम्स ये यहाँ पर है 0. ओके, सो दिस इज अवर u एंड दिस इज अवर v. ये हमारा u है और ये हमारा v पार्ट है. ओके, सो v पार्ट हमारा यहाँ पर 0 है एंड वंस यू नो दिस यू कैन जस्ट फाइंड आउट. तो बताओ ये है कि नहीं? नाउ कॉशी-रीमान कंडीशन हमारी क्या है? डेल यू ओवर डेल एक्स शुड बी इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई. सो डेल यू ओवर डेल एक्स हमारा क्या है यहाँ पर? 2x, राइट? एंड डेल वी ओवर डेल वाई हमारा यहाँ पर है ही नहीं. ओके, सो डेल वी ओवर डेल वाई हमारा यहाँ पर नहीं है. एंड सिमिलरली ये क्या है हमारा? ये तो पार्ट 0 ही है. सो देयरफॉर दिस इज नॉट सेटिस्फाइड. एंड सेकेंड है हमारी डेल u ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल v ओवर डेल x, पर v का पार्ट हमारा 0 है, इसलिए ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. एंड देयरफॉर योर फंक्शन इज फंक्शन एफ जेड विच इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक. So we conclude that this function is not analytic. But if you have a function, okay, let us say if you have a function fz equal to z square and now you want to check the analyticity of this function, तो इसकी क्या होगी? If fz equal to z square, check the analyticity of this function. अब इसका कैसे निकालोगे? बिकॉज यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ पर एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर लिखा है. तो जेड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? एक्स प्लस जेड इज एक्स प्लस आई बाई, जेड इज एक्स प्लस आई बाई. तो जेड स्क्वायर यू कैन कैलकुलेट जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई. यहाँ पर मॉड नहीं है, राइट? सो जेड स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? एक्स प्लस आई बाई का होल स्क्वायर. ओके, नाउ इफ यू राइट डाउन दिस फंक्शन देन दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? 2x बाई आई, राइट? So if it is given to you that fz equal to z square, then check analyticity of the function. Then you have to write down z equal to x plus i y, then write down its square and then check. And mod z लिखा है, then you know कि x square plus y square है, so इसका imaginary part 0 है. Okay, but यहाँ पर you can see the difference, imaginary part is not 0. Okay, and now you know how to check the analyticity of the function. So here fz, you know, fz is equal to u plus iv, which is equal to x square minus y square plus 2x by I. So हमें u and v पता है. So calculate del u over del x, del v over del y.
everything and then see if this is analytic or not. Analytic है कि नहीं है? Yes, ma'am. है. Good. So this function is analytic. So see the difference कि वहाँ पर mod z square में नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारा function analytic है, right? Okay. So therefore this implies Cauchy-Riemann conditions are satisfied. Okay, and therefore this implies fz equal to z square is analytic. Okay, throughout the complex plane. ओके अच्छा, मुझे टाइम बता देना, मेरी जस्ट इसके बाद दूसरी क्लास है. ओके, नाउ व्हाट इज ए हार्मोनिक फंक्शन? हार्मोनिक फंक्शन क्या है? So any function which satisfies Laplace equation, Laplace equation याद होगी फर्स्ट ईयर से. Any function which satisfies Laplace equation, Laplace equation क्या होती है? भूल गए? This is known as Laplace equation. Okay, तो Laplacian operator कहलाता था कि नहीं, डेल्टा स्क्वायर. Okay, so any function which satisfies Laplace equation, अगर डेल्टा स्क्वायर f equal to 0 है, then this is known as Laplace equation, and any function which satisfies this equation is known as harmonic function. And डेल्टा स्क्वायर f क्या होता था? ये हमारा डेल्टा स्क्वायर f is del square f over del x square plus del square f over del y square प्लस डेल स्क्वायर ऑफ एफ ओवर डेल जेड स्क्वायर, यही तो होता था. सो इफ दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस इज कॉल्ड ए हार्मोनिक फंक्शन. Okay, so now you know Cauchy-Riemann conditions. So if you write down these Cauchy-Riemann conditions, then they are we know Cauchy-Riemann conditions. They are del u over del x equal to del v over del y and del u over del y equal to minus del v over del x. Let me call this equation number A and B. Okay, now let us differentiate equation number A and B with respect to x and y respectively. So if you differentiate, on differentiating, equations A and B, with respect to x and y respectively, then we obtain, क्या आ जाएगा ये आपका डेल स्क्वायर, यहाँ इसको करो तो ये इफ यू आर डूइंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो ये क्या आया डेल स्क्वायर यू डेल एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा, राइट हैंड साइड पर क्या आएगा डेल स्क्वायर वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, राइट. एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से क्या आ जाएगा हमारा
एंड डेल स्क्वायर u ओवर, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, डेल x डेल बाई, दिस इज इक्वल टू, अच्छा नहीं डेल स्क्वायर, इसको b को बाद में करना है, अभी सिर्फ पहले a को, तो सिर्फ a को देखो पहले, एंड a को ही देखो अभी, एंड इफ यू आर डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू बाई इक्वेशन नंबर a, पहले इक्वेशन नंबर a की बात हो रही है, so we differentiate equation number a with respect to x and also with respect to y. So if you differentiate it with respect to y equation number a, then this is del by, left hand side पर आ जाएगा del y del x, और right hand side पर क्या आ जाएगा, del square v over del y square, right? नहीं कुछ गलत आ रहा है इसमें, कुछ गलत लिखा मैंने, रुको, अब मेरा माइंड स्टॉप हो गया, दूसरी क्लास में आ गया। मैम सेकंड को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके, मतलब हाँ। b को, और फिर a में ऐड कर देंगे मैम जो डिफरेंशिएट right, you are right, you are absolutely right, yes, so do that, okay? तो यहाँ पर फर्स्ट से हमारा क्या आ गया, डेल स्क्वायर u, ओहो कहाँ गया पेन, सो डेल स्क्वायर u ओवर, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, सो डेल स्क्वायर u ओवर इक्वेशन नंबर a से आ रहा है, इक्वेशन नंबर a, ओके, दिस इज डेल स्क्वायर v ओवर डेल x डेल बाई, एंड फिर दूसरी से क्या आ गया, डेल स्क्वायर u ओवर डेल बाई स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर v ओवर डेल 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 बाई डेल x, ये आया हमारा इक्वेशन नंबर b से, ओके, जो मैंने पहले लिखा था, ओके, एंड नाउ इफ u एंड b, ओके, possess continuous partial derivatives up to the second order, okay, then this equation, इसको भी कुछ नाम दे दो, then equation C leads to del square u over del x square, means we are adding just these two, plus del square u over del y square, this is equal to 0. So if we add these two equations, then we get this thing equal to 0, and this implies that u is a harmonic function, similarly you can do it for b, and you can show similarly, one can show it for v, okay, so this implies u and b are harmonic functions because they satisfy Laplace equations. So आज यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, because I have class with first year and they are very impatient. Okay, so let us close it for today. यहाँ तक ही करते हैं, अब इसके आगे नेक्स्ट टाइम करेंगे, मीन्स मंडे को, राइट? So should I stop, or if you have any question?